हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज शुरुआत करते हैं रेस्टोरेशन एज की। प्रीवियस वीडियो में वी हैव कवर्ड द प्यूरिटनिस्ट एज और कॉमनवेल्थ एज आप कह सकते हैं। दैट वाज द लेक्चर 6 सीरीज में हम लोग चल रहे हैं सभी लिटरेरी एराज के लिए। टुडे इट इज द टर्न ऑफ लेक्चर नंबर 7। 1660 to 1688 is the period of restoration era. We will talk all about this age, the major writers, and the major characteristics of the writings. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर daily live sessions होंगे, daily extensive MCQ practice होगी, PDF of each topic will be given in class और mock test होते हैं हर weekend पे, जिससे कि आपकी अपने exam के लिए बहुत ही thorough preparation हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए। चार्ल्स टू जी के वापस आने की वजह से ही इस एरा को रेस्टोरेशन एरा कहा जाता है। चार्ल्स वन जो इनके फादर थे, उनकी बिहेडिंग आपको याद होगी, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। रेस्टोरेशन पीरियड एक तरीके से उसी का कंटिन्यूएशन है। बीच में थोड़े टाइम के लिए क्रॉमवेल पीरियड आ गया था 11 साल के लिए, लेकिन फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी इन 1660। Restoration period in England began with the reinstatement of Charles II and spanned 28 years of 17th century. 28 years, a big deal. It refers to the beginning of the Stuart monarchy in England in 1660, and most people also consider this to be the year when the theatre ban was removed after a long 18 years. 1642 में theatre ban लगा था और 1660 में उस बैन को हटाया गया था 18 साल के बाद। तो ये एक ऐसी बात है जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा देखते हैं पॉलिटिक्स का क्या सिनारियो चल रहा था। In 1642, 6 years before the execution of Charles I in 1649, the Parliament closed the theatres in England. Few years later, Oliver Cromwell was proclaimed Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था ये 3 नाम याद रखिए। His government was fiercely Puritan in religion and administration. बिल्कुल हिंदी में कहें तो पुरातन पंथी विचार थे। So until the restoration of Charles II to the throne in 1660, there was very little of theatre in England. अगर होते भी थे तो बहुत स्मॉल स्केल प्राइवेट लेवल के थिएटर्स हुआ करते थे, इतने ग्रैंड स्केल के ग्लोब थिएटर्स जैसे नहीं। इस एरा के मेजर इवेंट्स को देखते हैं अब हम। इवेंट्स याद रखिएगा, आपको एग्जाम में अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं ये सब कुछ। Many other important events occur during this period, and the period is known as restoration because the monarchy was restored. यहाँ से तो आप शुरुआत करेंगे ही हमेशा। During the restoration period, the English, Irish, Scottish monarchies were restored. This period denotes the events surrounding the restoration of the monarchy and the new political establishment. And it was King Charles II who was prevailing. तो कमर्शियल और ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत इंक्रीज हो गया था, एजुकेशन में बहुत एक्सपेंशन हुई थी, मिडिल एंड लोअर क्लास वर एक्चुअली एंकरेज्ड टू स्टडी। अब एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला तो आएगा सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था, कॉन्फ्लिक्ट के चलते ही चार्ल्स टू वापस आए थे अपनी गद्दी पर। The two devastating incidents, the Great Plague of London and the Great Fire of London, did much more harm to English social life. तो ये दो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुई थी इसी पीरियड में। W.J. लॉन्ग एक हिस्टोरियन ने कहा है कि दो द किंग एंड द कोर्ट एंड हाई सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड aroused or discussed or pity, the private life of England remained honest and pure even in the worst days of restoration. तो W.J. लॉन्ग ने बोला कि
हम कह सकते हैं कि मे बी हमारे पास कुछ था हाई सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन कॉमन मैन की लाइफ लगभग ठीक चल रही थी। सबसे बड़ा इवेंट तो हमारे लिए ओपनिंग ऑफ थिएटर्स ही था। थिएटर्स जो कि ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था उन दिनों। इट वॉज नॉट दी टाइम पीरियड ऑफ नेटफ्लिक्स एंड प्राइम। थिएटर्स पर ही डिपेंड होना पड़ता था और थिएटर्स बंद करवा दिए गए थे। All the institutions that were closed in puritanical moment were opened during the Restoration period. Political monarchy, parliament, episcopacy, and law were all restored. Clubs and coffee houses were also established during this period. These houses became the center of the political discussions, and from here only periodical essays were originated. पीरियोडिकल एसेज की हम लोग अलग से भी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। राइज ऑफ नियो क्लासिसिज्म। तो नियो क्लासिसिज्म का जन्म हम कह सकते हैं रेस्टोरेशन एज से ही शुरू हो गया था। ऑल्दो नियो क्लासिसिज्म हम लोग अलग से वीडियो में कवर करेंगे। रेस्टोरेशन मार्क्स अ कंप्लीट break with the past, and the Elizabethan romanticism was almost over. With the end of the past, literature took a new spirit. एक नई जान आ गई थी लिटरेचर में, तो लिटरेचर के सब्जेक्ट, लिटरेचर के स्टाइल बड़े डिफरेंट होने लगे थे। एशियंट्स को भी इमिटेट किया जाने लगा था। Authors of this period were not endowed with exceptional talent, so they returned to the ancient writers for guidance and inspiration. They directed the attention to the slavish imitation of rules and ignored the importance of the subject matter, और ये हैबिट एज ऑफ ट्राइडन और एज ऑफ पोप में आई थी। ऑल्दो इनको हम न्यू क्लासिकल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर पोप तो लिखते भी हैं, earn hence for ancient rule just esteem, to copy nature is to copy them. तो अगर आप एंशियंट राइटर्स को कॉपी करते हो तो इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर एक्चुअली। पैम्पलेट लिटरेचर का कल्चर बहुत प्रोग्रेस कर रहा था और दो डायरिस्ट्स थे, जॉन एवेलिन एंड सैमुअल पेपेज, जिनकी वजह से हमें इस पीरियड के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही साथ बटलर की ह्यूडिब्रास विच रिडिक्यूल द प्यूरिटन्स। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स रही थी रेस्टोरेशन एरा की। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जन्म भी इसी एरा में हुआ था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का आई सजेस्ट यू कि मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो ज़रूर देखिए, आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हांस हो जाएगी। प्लीज़ आस्क फॉर द लिंक इन कॉमेंट्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स प्लॉट हुआ करते थे, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इंट्रीग्स, स्पाइंग, सेक्सुअल लाइसेंशियसनेस और हाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाता था। ये सब कुछ बहुत प्रिवेल कर रहा था। और मेजर राइटर्स जो थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स सेंस में जो लिख रहे थे, विलियम विचुअली, विलियम कॉन्ग्रीव, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड शेरिडन, इन सब के ही आप काउंटर पार्ट राइटिंग्स भी देख सकते हैं। द कंट्री वाइफ, द वे ऑफ द वर्ल्ड शी स्टूप्स टू कॉन्कर, एंड द राइवल स्कूल फॉर स्कैंडल। ये सब कुछ आपको मे बी राइटिंग्स में मैच करने के लिए आ सकता है, लिस्ट 1 लिस्ट बी देकर, या फिर रेस्टोरेशन एरा के राइटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सेक्सुअल फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी रेस्टोरेशन प्लेज में, और इसी वजह से थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था। अगर हम जेरेमी कॉलियर का एक टेक्स्ट मेंशन ना करें तो रेस्टोरेशन एरा का कॉमेडी ऑफ मैनर्स अधूरा रह जाएगा। So these manners were being criticized for immorality, specifically by Jeremy Collier, जिन्होंने लिखा A Short View of the Immorality and Profaneness of English Stage। तो जेरेमी कॉलियर्स ने कहा कि ये एक ऐसी एरा थी जिसमें कि इमोरलिटी बहुत प्रिवेल कर रही थी इन सब राइटर्स की वजह से। जॉर्ज थर्ज, विलियम विचुअली, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वेनब्रग को तो उन्होंने स्पेसिफिकली अटैक किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर बता रही हूँ। जॉर्ज फेकर, जॉन ट्राइडन, तो ये सभी राइटर्स थे जो कि सोसाइटी को इमोरलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू जेरेमी कॉलियर। मेजर राइटर्स देख लेते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव काफ़ी मेजर राइटर थे इस एरा के, 1672 1739, जिन्होंने क्लोफेल नाम के सिडोनिम को भी यूज़ किया। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विलियम कॉन्ग्रीव के। इसके अलावा जॉन ड्राइडन, जो कि हीरोइक स्टेंजा लिखने के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेसिफिकली ही रोट
On the death of Oliver Cromwell and on the restoration of Charles II, he wrote Astrea Redux. ये दो चीज़ें आप याद रखिए. इसके अलावा एप्सिलॉम एंड एक्टिपेल, Religio Laici, Hind and the Panther, Fables, Annus Mirabilis, मेडल मैकफ्लिकनो काफ़ी पॉपुलर, जिसमें उन्होंने अपने ही एक फ्रेंड थॉमस शेडवेल को मॉक किया, एंड एलेक्जेंडर फीस्ट सेलिब्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक. एंड सैमुअल पेपेज, जो कि अपनी डायरी के लिए काफ़ी पॉपुलर रहे, ऑल दो सिर्फ एक डेकेड के लिए उन्होंने वो डायरी रखी 1660 टू 1669. फिर भी 3 मेजर इवेंट्स के बारे में हमें पता चलता है. ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, द सेकेंड डच वॉर एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन. हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू वन क्वेश्चन. आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और डिस्कशन के लिए मिलेंगे. एक क्वेश्चन देखते हैं. जेरेमी कॉलियर का 1698 का पैम्पलेट जिसमें अटैक किया गया था इमोरालिटी को, हु वॉज द प्रिंसिपल टारगेट? जस्ट टेल मी A, B, C और D. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस होगी, PDF of each topic will be given in class, और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं. सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा. दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स. सभी स्टूडेंट्स वीडियोज़ या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है. तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर examination.